अच्छा, screen is little blur. Yes, sir. Just a second. Magnetic induction at a point on equator. So we have got two equations which are very similar to electric the derivation for electric intensity at a point on axis as well as equator. So there we had 1 upon 4 pi epsilon 0 2 p upon r cube, and here we have mu 0 upon 4 pi 2 m upon r cube. And when it comes to equator, there we have 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r cube. Here we have got mu 0 upon 4 pi m upon r cube. Right? Now we will compare electric dipole with the magnetic dipole, right? So similarities. Between electric dipole, I will say electrostatics. So I'm going to deal with electric dipole here. And magnetism. If I say magnetism, so obviously I'm going to have magnetic dipole here. So analogous between electrostatics and magnetism. Yeah, similarity between electric dipole and magnetic dipole. So when it comes to, of course, इधर quantity लेंगे, कौन सा quantity को आप consider कर रहे हो? So you'll have electrostatics का जो terms आएगा वो इधर लिखेंगे, and here you're going to have magnetism का term. Fine. So we'll start with the first one. So the first one, it is going to be basic physical quantity. Basic physical quantity. So obviously electrostatics में basic physical quantity क्या होता है बच्चा? Charge होता है. So you're going to have electric charge, right? And when it comes to magnetism, you're going to have magnetic pole. क्योंकि उधर चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है, तो इधर पोल बेसिक प्रॉपर्टी होगा. So that is going to be the first one. Next, you're going to have field. So electrostatics में electric field आता है, and electric field को हमको पता है कि will represent it as E bar, and you're going to have magnetic field which will be represented by B bar. ये तो बेसिक है, आपको पता ही है. Then जो कांस्टेंट टर्म आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 upon 4 pi epsilon 0 आता है. So no doubt epsilon 0 को हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं. So इधर आता है mu 0 upon 4 pi. No doubt इधर mu 0 जो है, this is permeability of free space होता है, right? So you're done with constant term. Next, dipole moment. So dipole moment. So no doubt इधर electric dipole moment आता है, जिसको हम लोग P लिखते हैं. So no doubt P will be equal to Q into 2L रहेगा. P will be equal to 2L. वेक्टर है तो इधर लेंथ वेक्टर जैसा है तो इधर L bar होगा, right? And इसका जो डायरेक्शन है, so बच्चा where will be the direction of P bar? Positive -2 Q, to negative plus है. Q. -2 plus Q plus
Right. So it is directed along minus Q2 plus Q charge. Otherwise, negative to positive charge. Negative to positive charge. To be precise, minus Q2 plus Q. So when it comes to magnetic dipole moment, you're going to have m bar will be equal to small m into 2L. But a pole strength है magnetic dipole moment है. Now it is directed along south pole to north pole है. या minus m2 plus m. Minus m2 plus m. Right बच्चा? Yes. 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 Next term आता है force. But either force will be equal to E into Q होता है या Q into E होता है. Right? Force will be Q into E होगा. And either force, of course, M into B होगा. M into B. Charge is replaced by pole. Electric field is replaced by magnetic field. I hope it is clear. Yes. Yes. Then next is energy. Energy stored in dipole. तो कितना एनर्जी स्टोर होगा बच्चे इसका डेरिवेशन हम लोग तो 12th में करेंगे तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे बस ठीक है सो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा तो यू लिखेंगे सो इट इज माइनस पी डॉट ई रहेगा तो इन शॉर्ट यू कैन राइट इट एज माइनस पी ई कॉस थीटा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है सो इट इज माइनस पी ई कॉस थीटा होगा इन द सिमिलर मैनर उसके हिसाब से क्या होगा बच्चा यू इज इक्वल टू माइनस एम बार डॉट बी बार which will be minus mb cos theta होगा. Is it clear बच्चा मतलब एक डाइपोल में कितना एनर्जी स्टोर रहेगा ऑफ कोर्स उसको जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है उसका फॉर्मूला है बच्चा ठीक है ये तो अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. इज इट क्लियर? Yes. ठीक है नेक्स्ट इज कूलम्ब्स लॉ एंड यू नो दैट कूलम्ब्स लॉ का हिसाब से जो फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच में इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर है. तो ऑब्वियसली मैग्नेटिज्म में दो अलग अलग चार्ज मतलब दो पोल्स एग्जिस्ट नहीं होता राइट तो मोनोपोल will not exist in magnetism. So monopole will not exist in magnetism. तो ultimately हम लोग का कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला इधर नहीं आएगा. बच्चा is it clear? Yes. Yes. So now axial point, the magnetic induction, sorry, electric intensity it is 1/4 pi epsilon 0. This is 2p bar upon r cube है. And the direction of intensity along p bar होगा and it is along p bar है तो मोमेंट का डायरेक्शन नहीं होता है so इधर आएगा b bar will be equal to mu 0 upon 4 pi this is 2 m bar upon r cube so obviously इधर along m bar होगा क्योंकि मोमेंट का डायरेक्शन में होगा right now equatorial point so you're going to have b bar will be equal to sorry not b bar e bar will be equal to 1/4 pi epsilon 0 p bar upon r cube this is opposite to p bar aayega direction opposite to p bar and when it comes to magnetism you're going to have mu 0 upon 4 pi m bar upon r cube again it is opposite to m bar but is it clear? Yes. Yes.
ओके कंप्लीट कर लो बच्चे। Done, sir.
फिनिश्ड? Yes. बच्चे सबका हो गया? सबका Yes. 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 ठीक है, तो रब कर रहा हूं बच्चों में। फाइन। तो अभी हम लोग ने जो डेरिवेशन किया, एक एक्सिस पे था और ऑफ कोर्स एक इक्वेटर। तो अभी तक हम लोग ने एक ऑर्बिटरी पॉइंट के लिए डिराइव नहीं किया, मतलब पॉइंट सपोज एक्सिस पे नहीं है, इक्वेटर में नहीं है, किधर भी 3 डायमेंशनल में किधर भी है, तो उधर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा उसका इक्वेशन अभी निकालेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए बार magnet. So obviously at an arbitrary point. So magnetic field due to a bar magnet at an arbitrary point. So obviously अभी point axis और equator में नहीं होगा, किधर भी हो सकता है। ठीक है, so हम लोग पहला एक बार मैग्नेट कंसिडर करेंगे। so consider a bar magnet having magnetic moment M, that is capital M, magnetic moment M with center of magnet at point O है। So center at point O, तो obviously वो center होगा। तो मोमेंट m है, तो ऑब्वियसली m विल बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l होगा। तो अभी एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, वो लेट इट बी पॉइंट P होने दो, और वो किधर भी हो सकता है, राइट। लेट P बी एनी पॉइंट, राइट। इतना ही है कि ये पॉइंट, ये जो डाइपोल है उसका मैग्नेटिक फील्ड का अंदर होना चाहिए, इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। बस इधर तक क्लियर है? Yes. Yes. ठीक है बच्चा, अभी ध्यान से सुनो। फर्स्ट हम लोग एक मैग्नेट कंसिडर करेंगे। So we'll consider a magnet. So obviously ये उसका एक्सिस रहेगा। So this is going to be the axis. ये एक्सिस है। So इधर हम लोग ने साउथ पोल लिया, इधर नॉर्थ पोल, और आपको सेंटर एट पॉइंट O है। क्लियर? एंड नो डाउट ये पॉइंट जो है, ये जो लाइन है, तो इक्वेटर रहेगा। So this is equator। ठीक है, अभी मोमेंट का जो है, मोमेंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है।
So moment it is going to be south to north रहेगा. So this will be the direction of moment. This will be the direction of moment. But is the diagram clear up to this much? Yes. Yes. So एक point select करो, let it be P. So अभी वो ये point आपको clearly दिख रहा है कि वो axis पे भी नहीं है, equator भी नहीं है. तो एक random point है. Let P be any point. बच्चा किसी का माइक है ना अनम्यूट हो गया है और रोड का साउंड आ रहा है. आई थिंक साही दलवी बैच नंबर 1 बच्चा म्यूट हो जाओ. Yes, sir. Okay. So anyway, so we have selected a point. So that is going to be point P. अब ये P और O का बीच में जो डिस्टेंस है ना बच्चा, that is going to be R है. So इधर से इधर डिस्टेंस R है. So I'll write it as R bar, which will be OP bar होगा. So OP bar is nothing but the position vector of P with respect to O है. So position vector of P with respect to O. So R bar, R is the distance from O to P है, and R bar it is the position vector of P with respect to O है. So I hope इधर तक सबको समझ में आया है. Yes, sir. Yes. ठीक है. So let P be any point in its electric field at a distance R from, that is small r, from center of magnet O. चलो इधर तक हो गया. बच्चा अभी मैग्नेटिक इंडक्शन इधर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है. हमारे पास दो ही फॉर्मूला है, एक मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस और एक मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटर. तो इसका मतलब एक्सिस और इक्वेटर का फॉर्मूला लेके ही हम लोग को इसको सॉल्व करना है. ठीक है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो m बार दिख रहा है आपको, उसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे. या यू विल रिजॉल्व वन मैग्नेट इनटू टू मैग्नेट्स. एक मैग्नेट है, इसको दो मैग्नेट में रिजॉल्व करेंगे. राइट. सपोज ये एंगल थीटा है. दिस एंगल, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ऑब्वियसली मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं. दिस इज m बार. तो एक कंपोनेंट अलोंग r बार होगा, एक परपेंडिकुलर टू r बार होगा. यू गेटिंग मी बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूं? Yes. तो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे. ऑब्वियसली एक तो इधर ही आएगा ऐसा. राइट. एंड दूसरा कंपोनेंट ऐसा आएगा लाइक दिस. फाइन देन. तो हम लोग ने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया. बच्चे ये m है और ये कंपोनेंट इधर थीटा है, तो अल्टीमेटली ये कंपोनेंट m cos थीटा होगा. Yes. एंड ये जो कंपोनेंट है अल्टीमेटली m sin थीटा. Sin theta. बच्चे एक रेजोल्यूशन सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. मतलब एक्चुअली ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा. दिस इज m बार, राइट. तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया. ये थीटा है तो m का इधर कंपोनेंट m cos थीटा होगा एंड ऑफ कोर्स इधर m sin थीटा होगा. इसका मतलब अभी सिस्टम में एक मैग्नेट नहीं है, दो मैग्नेट है. एक मैग्नेट का मोमेंट m cos थीटा है, दूसरा मैग्नेट का मोमेंट m sin थीटा है. बच्चे इज इट क्लियर? Yes.
ठीक है. So the magnetic moment M is resolved into the magnetic moment, the magnetic moment, of course M bar, is resolved into कितना कंपोनेंट में रिजॉल्व किया बच्चा? 2. 2. Yes, resolved into two components. One is M cos theta. Cos theta and M sin theta. yes component along R bar है. So component along R bar मतलब M cos theta होगा, and component perpendicular to R bar. exactly component perpendicular to R bar. right R bar. इसका मतलब ये M sin theta होगी. Clear up to this much बच्चा? Yes. Yes. And किधर resolve किया? At point O, right? So the magnetic moment M bar is resolved into component along R bar and component perpendicular to R bar. Of course, about the center of magnet O है. तो हम लोग ने रिजोल्व किया O पे, O को रेफरेंस लेके, राइट? Yes. अच्छा सम ठीक है. अभी बच्चा M cos थीटा के लिए ए पॉइंट किधर है बच्चा? एक्सिस पे है. Yes. तो एक्सिस का हमारा पास तो फॉर्मूला है ना. सो फॉर कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट है बच्चा? M cos थीटा. M cos theta along R bar. Don't you think this point for this M cos theta, it is along axis है. The point P is along axis. Yeah, point P is at axial point. Point P is an axial point. Clear? Then Yes. magnetic induction at point P is given by बच्चा बताओ फॉर्मूला क्या होगा? B axis is mu 0 upon 4 pi. It is going to be 2m. बच्चा यूजुअली 2m आता है, बट इधर m का बदले में m cos theta लिखना पड़ेगा क्योंकि मोमेंट m cos theta and this is r cube. R cube. Yes. बच्चा ये समझा? Yes. And it is directed along m cos theta. मतलब जो m cos theta का डायरेक्शन में ba का डायरेक्शन होगा. मानते हो बच्चा एक्सिस में मैग्नेटिक इंडक्शन और मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है, बराबर है? Same. Yes. इसका मतलब अभी हमारा बी ए जो आएगा उसका डायरेक्शन यही डायरेक्शन में रहेगा, लाइक दिस विल बी द डायरेक्शन. सो दिस इज बी ए. आई होप इट इज क्लियर. एनी डाउट्स? सर m cos थीटा एक्सिस के अलॉन्ग कैसे? बच्चा अभी ये मैग्नेट बन चुका है, ये मैग्नेट, तो ये मैग्नेट हाँ है. यस सर समझा. तो पॉइंट इधर किधर, इसके लिए तो एक्सिस हो गया ना वो पॉइंट. हाँ समझा. समझा? हाँ ठीक है बच्चा, कंप्लीट करो इसको. डायग्राम इनकम्प्लीट है, जैसे जैसे लिखते जाएंगे उसको कंप्लीट करते जाएंगे डायग्राम को भी.
Done, sir. Okay. सब बच्चा सबका हो गया लिख के? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, कोई है जिसका नहीं हुआ है लिख के? ठीक है, सबका हो गया। फाइन देन, सो ये पार्ट रब कर। फाइन, तो अभी हम लोग m sin थीटा के लिए ऑब्वियसली पॉइंट P किधर है बच्चा? इक्वेटर इक्वेटर Equate. है ना, पक्का है ना, इक्वेटर पे है। Yes. Yes. ठीक, सो फॉर कंपोनेंट ऑफ कोर्स m sin थीटा perpendicular to r bar, the point P किधर है बच्चा? पॉइंट P Equator. is an equatorial point. इक्वेटोरियल पॉइंट, एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन का जो फॉर्मूला है ऑब्वियसली आपको पता है। इक्वेटोरियल पॉइंट एट a distance r, then magnetic induction at point P is given by so equator है तो b e लिख रहा हूं बच्चा, so it is mu 0 upon 4 pi m sin theta upon r cube, R cube. एंड आपको पता है डायरेक्शन अभी इक्वेटर में m sin थीटा का ऑपोजिट होगा। Opposite. It is directed opposite to m sin थीटा है, इसका मतलब m sin थीटा इधर है तो इसका ऑपोजिट आना चाहिए, so it will be opposite to m sin theta, so this is going to be somewhat like this, इसका opposite, obviously this will be BE होगा बच्चा। क्लियर अप टू दिस पंच? Yes. अभी रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, है ना बच्चा? तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली इधर आएगा लाइक दिस, ये होगा B. B is going to be the net magnetic induction. I hope it is very clear बच्चे। बच्चे समझ में आया? ये एंगल अल्फा ले लिया मैंने, Yes. मतलब हमारा रिजल्टेंट अभी B होगा, इन दोनों को ऐड किया तो B मिलता है, राइट? तो अभी B का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या यूज करेंगे बच्चा हम लोग? Parallelogram law. तो इन दोनों का बीच में एंगल कितना है? 90. 90. यस, इट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, cos 90 तो 0 होगा, 0. इसका मतलब खाली p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ही बचेगा, राइट? Yes. 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 So therefore the net magnetic induction या magnetic field at point P is given by, so it is going to be B is equal to square root of B A square plus B E square.
तो दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हम लोग ने, तो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज गोइंग टू बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब, इसका स्क्वायर, प्लस इट इज गोइंग टू बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई m sin थीटा अपॉन r क्यूब रेज टू ऑफ कोर्स होल स्क्वायर है। तो इसमें कुछ कॉमन टर्म्स डेफिनेटली बाहर आएगा, जैसा कि म्यू 0 बाहर आएगा, अपॉन 4 पाई बाहर आएगा, देन m बाहर आएगा, r क्यूब भी बाहर आएगा। जो बाहर नहीं आएगा इट इज गोइंग टू बी, इधर क्या रहेगा बच्चा, सो 2 2m cos theta. उसका स्क्वायर Yes. प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, राइट बच्चा। Yes. Yes. सो दिस विल बिकम b इज इक्वल टू, इसको चाहे तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा तो आप लिख सकते हो 4, एंड ये बनेगा cos Cos स्क्वायर, square. Cos square theta. राइट है बच्चा। Yes. Yes. अब इसको क्या करेंगे हम लोग, विल राइट b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, बचे 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिखूंगा। कैन आई डू दैट? Yes. Yes. व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा? 1. 1. 1. तो ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ, यू लेफ्ट विद 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये रहेगा मैग्नेटिक इंडक्शन का मैग्नीट्यूड एट दैट पॉइंट। क्लियर है बच्चा? Yes. Yes. एनी Yes. डाउट्स? एनी डाउट्स? No. हाँ, कंप्लीट करो बच्चा। अभी डायग्राम फुल हो गया, ये पूरा डायग्राम हो गया अभी।
Finished? बच्चे सबका हो गया? इधर कोई है जिसका नहीं हुआ है? हो गए सर लिख के। ठीक है, फाइन। तो अभी बच्चा एंगल का बात करेंगे, क्योंकि पॉइंट एक्सिस में है तो बी का और एम का डायरेक्शन सेम था, इक्वेटर है तो अपोजिट था, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट में बी इधर है एंड एम इधर है, तो अभी इनका बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। तो पहला अल्फा निकालेंगे हम लोग, देन देखेंगे कि एम बार और बी बार का बीच में एंगल कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया, अभी डायरेक्शन देखेंगे। फाइन। सो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आई विल टेक अप दिस ट्रायंगल। सो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इधर tan अल्फा जो है इट इज ऑपोजिट तो बीई होगा, अपॉन एडजेसेंट है दैट इज बीए है, राइट? बच्चा बराबर बोल रहा हूं? Yes. 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 So tan alpha will be equal to BE upon BA होगा। तो हम लोग को दोनों का फॉर्मूला पता है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। So tan alpha will be equal to BE is mu 0 upon 4 pi, that is M sin theta upon R cube है, and this is mu 0 upon 4 pi 2M cos theta upon R cube। So ultimately बहुत सारा टर्म्स कैंसल होगा, so left with tan alpha will be equal to sin theta upon 2 cos theta है। So sin upon cos is tan है, so obviously tan alpha will be equal to 1 by 2 tan theta। theta तो हमको पता ही है, right? So alpha will be equal to tan inverse of, in bracket it is 1 by 2 tan theta होगा। So this will be the formula for alpha। मतलब थीटा का साथ अल्फा क्या होता है बच्चा? वेरी होता है, मतलब पॉइंट अदर अलग अलग पॉइंट लिया तो थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज हो तो अल्फा भी चेंज होगा। सो इन शॉर्ट हर एक पॉइंट में बी का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। आई रिपीट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ बी विल चेंज। अभी एम इधर है बच्चा, एम का डायरेक्शन इधर है, राइट? एम का डायरेक्शन, अभी बी इधर है, तो अल्टीमेटली बी को ज्वाइन किया, सो बच्चे एम इधर है, सो ये पॉइंट में बी है, इधर बी है, सो अल्टीमेटली ये थीटा है और ये अल्फा है, तो एम और बी का बीच में एंगल क्या होगा बच्चा? थीटा प्लस अल्फा होगा। Yes. बच्चा समझ में आ रहा है? थीटा प्लस अल्फा। आई होप इट इज क्लियर। Yes. The angle between B bar and M bar, the angle between B bar and M bar is theta plus alpha होगा, theta plus alpha। Everybody followed up to this much? बच्चे इधर तक समझ में आया? Yes. ठीक है, Yes. अभी ध्यान से सपोज मैंने पॉइंट पी को इधर से इधर लेके आया एक्सिस पे, ठीक है, एक्सिस पे लेके। नोट नंबर 1, इफ पॉइंट पी लाइस ऑन एक्सिस, पॉइंट पी इधर गया बच्चा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा?
0. गुड, 0. थीटा इज 0, बराबर है ना, थीटा 0 है। तो ये फॉर्मूला बच्चे, ये फॉर्मूला याद करो, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई स्क्वायर m अपॉन r क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। बच्चा थीटा 0 है तो cos थीटा क्या होगा बच्चा? 1. 1. cos 0 तो 1 होगा, बराबर है। अभी स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा 1 है तो cos स्क्वायर थीटा भी 1 होगा, तो One. अंदर बचेगा, है ना, Four. cos स्क्वायर थीटा भी 1, 4। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ Yes. 4 बच्चा? 2. 2. दोनों दिन तुम्हारा आपको b का फॉर्मूला मिलेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। डोंट यू थिंक ये एक्सिस का फॉर्मूला है? Yes. 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 सोच लो बच्चा, डोंट यू थिंक ये एक्सिस का फॉर्मूला है? Yes. क्लियर है, एकदम क्लियर है, एनी कंफ्यूजन? ठीक है। एंड थीटा 0 तो डेफिनेटली अल्फा तो 0 होगा ही, है ना? yes, Yes. नाउ सपोज ये पॉइंट को मैं इक्वेटर पे लेके आया, मतलब इधर थीटा से 90 हो जाएगा. 90 होएगा थीटा. एग्जैक्टली थीटा होगा 90। इफ पॉइंट P lies ऑन इक्वेटर, तो आपने बोला थीटा 0, ठीक है, थीटा 90। 90. व्हाट इज cos 90 बच्चा? 0. 0. डोंट यू थिंक cos 90 0 है तो 1 होगा. 1. ये 1. पूरा 0 One. स्क्वायर रूट ऑफ 1 आएगा. 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ इक्वेटर 1 का क्या होता है फॉर्मूला बच्चा? आएगा. इक्वेटर का फॉर्मूला. राइट, इक्वेटर का फॉर्मूला। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है जनरलाइज फॉर्मूला है, मतलब सबके लिए एप्लीकेबल है। क्लियर अप टू दिस मच? एनी डाउट्स? No. No. ठीक है बच्चा, कंप्लीट करो इसको। तो एक्सिस के लिए अल्फा तो 0 होगा एंड इक्वेटर के लिए अल्फा 90 होगा। ओके,
बच्चे सबका हो गया? Yes, sir. तो आई होप ये डेरिवेशन एकदम क्लियर है। Yes. ठीक है बच्चा, तो चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको घर पे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक तो कवर नहीं हो सकता। रब करो बोर्ड, सबका हो गया तो? Yes. Yes. ठीक है। ध्यान दो बच्चा। तो आई डोंट नो कौन सा क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोग ने मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं किया होगा। सो अज्यूम करो एक मैग्नेट है, ठीक है, जिसका मोमेंट m है। सो अभी हम लोग दो पॉइंट सेलेक्ट किए, एक P और एक Q। सो P सेंटर से it is at a distance 10 centimeter and Q it is at a distance 20 centimeter। दोनों एक्सिस पे है बच्चा, तो ऑब्वियसली एक्सिस है। बच्चा डायग्राम समझ में आया? बार मैग्नेट है जिसका मोमेंट m है, दो पॉइंट सेलेक्ट किया है, तो एक 10 सेंटीमीटर सेंटर से है, एक 20 सेंटीमीटर। अभी इधर मैग्नेटिक इंडक्शन B1 है और इधर मैग्नेटिक इंडक्शन B2 है। तो बताओ B1 और B2 में किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा बच्चा? B1 B. B, B1 B1. B1. क्योंकि नजदीक जो है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा ना बच्चा। P नजदीक है मैग्नेट का, इधर स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, मतलब B1 ऑब्वियसली ग्रेटर देन B2 रहेगा। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, B1 अपॉन B2 का जो रेशियो है 12.5 है। कितना है बच्चा? 12.5। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ B1 upon B2 is 12.5, find the magnetic length। Find the magnetic length। मैग्नेटिक लेंथ मतलब ऑब्वियसली आपको फाइंड आउट करना है 2L। कर सकते हो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, लिख लो, नोट डाउन कर लो, और नेक्स्ट ऑफ कोर्स कल मेरे को इसका आंसर चाहिए। अभी इधर शॉर्ट मैग्नेट या लॉन्ग मैग्नेट नहीं बोला है, तो ऑब्वियसली आपको मैग्नेटिक लेंथ चाहिए, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे लॉन्ग मैग्नेट का। लॉन्ग मैग्नेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, याद रखना। सो B1 upon B2 is 12.5। फाइंड द मैग्नेटिक लेंथ, मतलब आपको 2L निकालना है, 2L। नोट डाउन करो, देन विल स्टॉप। Done, sir. ओके, सबने नोट डाउन कर लिया बच्चा? Yes, sir. Fine then. So we'll stop now.